At the moment, I'm enjoying my franchise experiences. Pakistani players, I have great respect for, of course. Does Pakistan need a specialist captain? If someone is good enough for all three formats. बाबर आजम और विराट कोहली का हमेशा कंपैरिजन होता रहता है। नहीं, देखिए विराट कोहली एक सीजन प्लेयर है। बाबर है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि तीनों तरफ से क़यादत करते हैं तो उनकी बैटिंग पे इसका असर पड़ सकता है। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 प्लेयर है और तीनों फॉर्मेट में अगर देखेंगे तो उनका एवरेज 50 के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक। मैं मौजूद हूं इन दिनों दुबई में, जहां IL T20 के मुकाबले जारी हैं। मुख्तलिफ खिलाड़ियों और ऑफिशियल से हमारी मुलाकातें हो रही हैं। आज के शो में हमारे गेस्ट होंगे एंडी फ्लावर, साबिक जिम्बाब्वियन स्टार क्रिकेटर और इंग्लिश टीम के साथ भी काफी अर्सा तक मुंसलिक रहे। इन दिनों IL T20 में वो कोचिंग कर रहे हैं। साथ ही हम साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आगाज करते हैं एंडी फ्लावर से। Hi Andy, do you think Pakistani cricketers should be a part of IL T20? Pakistani players, I have great respect for, of course, and there are some outstanding Pakistan players. Some of them are playing in the Big Bash. It would be great to see them in this league. Does Pakistan need a specialist captain for all three formats? I think the trend is going that way. Is that they sort of separating coaching teams, white ball and red ball coaching teams. In some countries, and also captains. But I think it depends on what personnel is available. If someone is good enough for all three formats, and he's got enough energy to do it, and the fixture list allows it, then the selectors can make that decision. I think it very much depends on the particular situation in that country at the time. Would you like to work as head coach of Pakistan team? At the moment, I'm enjoying my franchise experiences, and I'm quite busy at the moment, so I'm going to stick doing that. What role IL T20 can play to promote cricket in UAE? You know, that would be a wonderful byproduct of putting this IL T20 on. We want to see some of the smaller nations, smaller cricketing nations in the world catch up with some of the bigger nations. And in fact, in the last T20 World Cup in Australia, we saw that. We saw so many upsets. And that gap between the bigger nations and the smaller nations in T20 cricket, it's being narrowed, which is brilliant for the world game. So I think we must actively develop the UAE players, and that must be one of the goals of this tournament. Some of the big names are being criticized for low strike rate. What do you think about that? We all like aggression, of course. But I still think there's a role for different types of players. So it depends on the selectors and the coach and the captain how they want to balance that out. But certainly power is important. Power and aggression is important. But there are different ways of scoring quickly. Surya Kumar has just shown us very recently how to do it with skill and innovation. So I think there's place for all types of different cricketers. You just as selectors and head coach and captain, you got to get your balance right. Thanks for your time, Andy. एंडी फ्लावर की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान इतने जबरदस्त प्लेयर हैं कि दुनिया की किसी भी प्लेइंग 11 का वो हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी पर वो कोई तबसरा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा नहीं है। एंडी ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल में अगर उन्हें कोई कोचिंग की ऑफर हुई पाकिस्तान की जानिब से तो फिलहाल वो कबूल करने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो फ्रेंचाइज टीमों का ही हिस्सा बनकर खुश हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरफ, जो आए हुए हैं IL T20 में कमेंट्री करने के लिए। दुबई में उनसे बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, बाबर के हवाले से भी। तो आइए सुनते हो। अजहर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जो क्रिकेट आजकल हो रही है, आप देखते होंगे एक आपके जमाने में बहुत लंबे लंबे कैरियर होते थे, बड़े बड़े नाम होते थे। अब थोड़े थोड़े अरसे के लिए लोग आ रहे जा रहे हैं, कुछ प्लेयर भी हैं जो, तो क्या वजह है आपके ख्याल में? ज्यादा फॉर्मेट हुए ना, तो इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि प्लेयर आ रहे और चले जा रहे हैं। वहाँ पे पहले जो फॉर्मेट होते 50 ओवर गेम होता था और टेस्ट मैच होता था। आजकल इतने ज्यादा फॉर्मेट और इतने लीग हो गए हर जगह पे, सबको लगता है क्रिकेट की कमी भी महसूस होगी, तो प्लेयर आएंगे और जाएंगे। तो आजकल के जो प्लेयर हैं, अगर कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि जैसे आप लोगों की टक्कर का है? नहीं, हमारे हमसे ऐसे कोई कंपैरिजन इराज में कंपैरिजन कोई कर नहीं सकते, लेकिन आज के प्लेयर बहुत अच्छा है कि कम सबसे अच्छे प्लेयर है। अगर आप उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे, उनके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो
काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबर आजम और विराट कोहली का हमेशा कंपैरिजन होता रहता है, लोग बोलते रहते हैं। आपको क्या लगता है इनके बारे नहीं देखिए, विराट कोहली एक सीजन प्लेयर है। आई मीन डेफिनेटली, आई मीन मतलब स्टैटिस्टिक्स है, आई मीन काफी बड़े स्टैटिस्टिक्स है। तो मैं समझता हूँ एक दो प्लेयर को कंपेयर करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अलग प्लेयर है, अलग उनकी बैटिंग टेक्निक अलग है, उनका खेलने का अंदाज अलग है, और विराट कोहली का खेलने का अंदाज अलग है। तो मेरे ख्याल में कंपैरिजन यहाँ पे करना इतना आसान नहीं है, तो वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर। बट अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली इज बेटर। हैं? आप भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और के साथ कैप्टन भी थे। अब जैसे बाबर है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि तीनों तरफ में क़यादत करते हैं, तो उनकी बैटिंग पे इसका असर पड़ सकता है फ्यूचर में, और भी प्रेशर में है वो, अलग अलग कैप्टन होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी तक तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, बट लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैचेस होते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप में हुआ, उनका जो फॉर्म जो है थोड़ा सा डिप हो गया था, मतलब तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सका। बट लेकिन देखिए, बात प्लेयर ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, तो उनको रखते हैं। जैसे कि अभी विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में नंबर वन प्लेयर है, और तीनों फॉर्मेट में अगर देखेंगे तो उनका एवरेज 50 के ऊपर है। तो ऐसा ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कैप्टनसी पे अभी तक अगर कैप्टनसी में अगर अगर कैप्टनसी में अगर कैप्टनसी का फर्क होता, तो मेरे ख्याल में शायद वो इतना ज़्यादा रन नहीं बनाते। बाबर और रिजवान जो खेलते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो एक जैसा ही खेलते हैं और काफी ओवर लेते हैं, जाया करते हैं। आपने भी उनकी बैटिंग देखी होगी, आपको भी ऐसा लगता है आपके ख्याल नहीं में? बिल्कुल, हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर जाए तो हो जाता है, बट लेकिन देखिए, जब आप थोड़ा सा फॉर्म अप का डिप होता है, तो फिर दो एक प्लेयर को कहीं नीचे भी आके खेलना पड़ेगा आपको, और जो ऊपर जो खेलने आ रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम नेचुरली ओपनिंग बैट्समैन है ही नहीं। तो अगर आप देखें तो निश्चित ओपनिंग करना चाह रहे हैं, पहले कहाँ पर अगर ऐसा लगा कि यहाँ पे आप रन नहीं बन रहे थे, कहीं नीचे नहीं। आप शाहीन अफरीदी को भी एक्शन में देखते रहते होंगे, उनके बारे में आपको क्या लगता है? कभी ऐसी वसीम अकरम वाली याद आई आपको कि यार वैसे ही है? नहीं देखिए, वसीम अकरम से कोई कंपेरिजन नहीं है। अभी तो बिल्कुल नए नए, अभी तो आके मेरे ख्याल में 4 या 5 साल से ही कहते हैं, बट लेकिन उनकी इंजरी भी से रिश्ते होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप जितना आगे बढ़ना जा रहे हैं, इंजरी होती है उतना आप पीछे रहता है। तो इतना आपको इंजरी फ्री होना चाहिए। अगर आपको वसीम अकरम की स्टेज तक सीखना है, तो आपको इंजरी फ्री। वर्ल्ड कप इस साल इंडिया में ही होगा, क्योंकि अभी बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह की पिचेज हैं, और आपका क्या ख्याल है कि कौन से प्लेयर वहाँ पे कामयाब था? इंडिया में अच्छे पिचेज है, ऐसा कोई नहीं, अच्छे पिचेज, अच्छे हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, और अच्छे पिचेज तो इतना अभी से कौन सा प्लेयर खेलेगा कैसा खेलेगा इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो मैचेस हो रहे हैं प्लेयर से पहले भी खेलना पड़ेगा, वहीं के बाद आगे वर्ल्ड कप। आखिर में अगर तो ये बताते हैं कि बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, अब यूएई में भी लीग शुरू हो गई है, तो इसका प्लेयर्स पे किस तरह का असर पड़ेगा? नहीं, वेट के बहुत अच्छा है, असर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौका मिल रहा है, चाहे वे लीग में हो, चलते दूसरी लीग में, तो मौका तो मिल। थैंक यू। अजहरुद्दीन की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था कि फिलहाल बाबर और कोहली का कोई मुआवजा नहीं है, कोहली काफी आगे। खैर ये तो उनके लिए, हमारे लिए तो बाबर ही नंबर 1 है। साथ में उन्होंने बाबर को यह मशवरा दिया कि वो निचले नंबर पर खेलें, क्योंकि रिजवान और बाबर T20 में काफी ओवर जाया करते हैं। अजहरुद्दीन ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के हवाले से वो कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक हसास मामला है और हुकूमतों के ऊपर है, वही कोई फैसला करेगी। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।